وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال تعالى في موضع آخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وفي رواية البخاري من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیارے ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف اس رب کے لیے جس نے ہم تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو، توحید والوں کو رمضان کا مہینہ دے کر خوشی کے ساتھ میں، محنت کے ساتھ میں، لگن کے ساتھ میں اس کو گزارنے کا موقع عطا کیا اور اس کے شکریہ کے طور پہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا بھی موقع عطا کیا. اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے کہ پروردگار نے ہم تمام انسانوں کو یہاں پر جمع کیا. بھائیوں، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس سے جدا ہوا ہے، گزرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کو رمضان کے شکرانے کے طور پہ ادا کیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے، جب وہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پہ عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. رمضان کا مہینہ گزرا، آپ نے کیا پایا کیا کھویا یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ تھا، رحمتوں والا مہینہ تھا، عظمتوں والا مہینہ تھا. ایک انسان نے کیا پایا کیا کھویا وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے برکتیں لے کے آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو عظمتوں کو لے کے آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو لے کے آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آپ نے بہت ساری باتیں سنی تو جہنم سے آزادی کو لے کے آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسانوں کو جنتی بنانے کے لیے آتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں نے رمضان کا مہینہ پانے کے بعد کتنی محنتیں کی، کتنا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی، سنوارنے کی کوشش کی. کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے آیا اور ہمارے بیچ سے ہوتا ہوا گزر گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ پانے کے بعد روزے رکھے ایمان کے ساتھ میں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، ادھر میں جانا نہیں چاہتا. ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلم سماج نے، مسلم معاشرے نے روزوں کا کتنا اہتمام کیا ہے. تو آج کا میرا پیغام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے اندر محنتیں کی، کوششیں کی. سب کے لیے نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ سیاسی میدان نہیں ہے کہ سب کو عید الفطر کی دلی مبارکباد، سب کے لیے ایسا، سب کے لیے ایسا. صرف روزے داروں کے لیے اللہ نے جو عید الفطر کا تحفہ دیا ہے یہ سب کے لیے نہیں دیا ہے. ان نمازیوں کو دیا ہے جنہوں نے رمضان کا مہینہ پانے کے بعد رمضان کے روزے رکھے، شب قدر میں جاگے، لیلۃ القدر میں قیام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کو سنایا، رمضان کے مہینے میں سنتوں کی پابندی کی، نوافل کا اہتمام کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے. یہ شکرانے کے طور پہ اللہ نے انہی کو یہ نماز دی ہے. تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض تھے جیسا تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. لیکن مسلمانوں کے اندر دیکھنے میں آیا کہ وہ ڈر، وہ خوف پیدا دکھائی نہیں دیا. پیارے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پانے کے بعد تراویح کا اہتمام کیا ہو
अब सवाल ये है कि मुस्लिम मुआशरे के अंदर इतनी बड़ी आबादी और मस्जिदों के अंदर नमाजियों की तरावी पढ़ने वालों की 2 सफ़े, इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों के नज़दीक रमज़ान की अहमियत तो है, रमज़ान का महीना फ़राइज़ में तो है, लेकिन मुसलमानों के नज़दीक अमनी मैदान में उसकी हैसियत नहीं है, उसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं है। अगर होता तो मुसलमान इसकी पाबंदी करता, इसका एहतमाम फरमाता। सहाबी रसूल ने सवाल किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए, अगर मैं रमज़ान का महीना पाऊँ, रमज़ान का महीना पाने के बाद तरावी का भी एहतमाम करूँ तो मेरा शुमार किन लोगों में होगा? आपने फरमाया था क़यामत के दिन तेरा शुमार सच्चों के साथ में, शहीदों के साथ में होगा। जिस रमज़ान का, जिस तरावी का इतना बड़ा दर्जा हो, मुसलमानों ने उसको समझा नहीं। प्यारे नबी ने फरमाया था, सुनन तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, मन कामा मअल इमाम, जिसने रमज़ान के महीने में इमाम के साथ में क़याम किया, तरावी का एहतमाम किया, उसे सारी रात इबादत का सवाब लिख दिया जाता है उसके लिए। जिस तरावी का इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा दर्जा हो, मुसलमानों ने उसको ऐसे ही टाल दिया। तो हमें देखना यह है कि हमने रमज़ान के अंदर अपने आप को कितना बनाया, कितना संवारा। अल्लाह ने हमें ये ईद उल फितर की नमाज दी है शुक्राने के तौर पे, ताकि मुसलमान अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाएं और उस रब का शुक्रिया अदा करें। परवरदिगार, तूने रमज़ान का महीना हमें अता किया था, हमने खुशी खुशी तेरी इबादत में गुजार दिया, तेरे नबी की सुन्नत की पाबंदियों में गुजार दिया, अब हम तेरे सामने अभी झुकने को तैयार हैं। अल्लाह ने फरमाया, और उनको चाहिए कि रमज़ान की गिनती पूरी करें, गिनती पूरी हो चुकी, वह तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की बड़ाइयाँ बयान करें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। ये तमाम की तमाम अल्लाह की बड़ाइयाँ, अल्लाह की तारीफ़ें इसके अंदर हैं। ये भी कर चुके अल्लाह, वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और ईद की नमाज अदा करने के बाद ये भी अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दिया। हदीस में आता है अबू दाऊद के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई खुशी मिलती या आपके पास कोई खुशी का मामला आता तो आप खरा साजिदन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाते अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए। आज हमारे यहाँ पे खुशियाँ मनाने के मेयार क्या है? खुशी आती है बाकायदा डीजों के ज़रिए से, गानों के ज़रिए से, म्यूज़िक के ज़रिए से, ये हमारी खुशी का इजहार होता है। प्यारे नबी का अंदाज़ ये था कि जब भी खुशी का मामला आता, खुशी आपको आती है, कोई खुशखबरी मिल जाती तो आप सजदे में गिर जाते शुक्राने के तौर पे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, मोमिनों को चाहिए रमज़ान गुजर चुका, ईद उल फितर का दिन आ चुका, वो खुश हों, खुशी ना मनाए, खुश हों। और खुशी जो होती है वो दिन की खुशी होती है इंसान की। आप इसको समझें, ईद का दिन है, हर एक के लिए नहीं है। किसके लिए है? जिस आदमी ने ईद उल फितर के दिन नए कपड़े पहन लिए, ईद उल फितर उनके लिए नहीं है। ईद उल फितर नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है। अल्लाह के रसूल की तालीम ज़रूर है कि आदमी ईद उल फितर के लिए नहाए, खुशबू लगाए, बेहतर से बेहतर कपड़े पहने। इन्नमल ईदु लिमन खाफल वईद, हकीकत में ईद तो उस आदमी की है जो क़यामत के दिन से डर गया, जिसे अल्लाह के सामने खड़ा होने का एहसास हो गया कि मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है, हिसाब व किताब देना है। क्योंकि रमज़ान का महीना इसीलिए आया था लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। इसीलिए रब्बे अज़ीम ने सूरह हश्र में फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा पैदा करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को गौर व फिक्र करनी चाहिए आने वाले दिन की क्या तैयारी है, क्या तैयारी है आपकी। क़यामत की तो बहुत दूर की बात, हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए इन हालात में भी आपकी कोई तैयारी नहीं है। क़यामत की तो बहुत दूर की बात है, इतना मुसलमान सुस्त और काहिल हो चुका है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी एक एक चीज़ से खबरदार है। तो ईद का दिन उस इंसान के लिए है जो क़यामत के दिन से डर गया। मेरे भाइयों, आज ईद उल फितर का दिन है, बड़ा खुशी का दिन है, गिने शिकवों को मिटाने का दिन है, दिलों से नफ़रतों को, हसद को, कीना कपट को निकालने का दिन है। आज हाथ से हाथ को मिलाने का दिन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, उनके अंदर आपस में इतनी मोहब्बतें हुआ करती थी कि आप हदीस की किताबों के अंदर देख सकते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया ला तहक़िरन्ना मिनल मअरूफ़ शैआ, किसी भी नेकी को कमतर न समझो, मामूली न समझो। वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलीक़, अगरचे अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना पड़े, अगरचे अपने भाई से झुक के मिलना पड़े। आज नाकें इतनी मोटी, इतनी ऊंची हो चुकी है कि इस्लाम मिट रहा है, मिट जाने दो, इस्लाम छूट रहा है, छूट जाने दो, लेकिन ये नाक ना झुकेगी और ना ही जो है भाई से खुशी से मिलेगी।
हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अम्मा आयशा पे जिना की तहमत लगी, मुनाफिकीन ने लगाई कि अम्मा आयशा ने नाउज़ुबिल्लाह जिना किया है, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की कि मुनाफिकीन झूठे हैं, ए नबी आपकी बीवी सच्ची है, आपकी बीवी पाक दामन है। बाद मुसलमान भी शामिल हो गए। हज़रत अबू बकर ने अपने एक रिश्तेदार का खाना पीना बंद कर दिया कि आज से मैं इसको खाना पीना नहीं दूंगा, अब तक दिया करता था, इसने मेरी बेटी पे ज़िना का इल्ज़ाम लगाया है। मुनाफिकीन के साथ में ये भी शामिल हो गया है। अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल की वन याफ़ू वन यस्फ़ू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, इन्हें चाहिए अल्लाह के बंदों को माफ़ करते रहें, माफ़ी देते रहें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे? हज़रत अबू बकर की आंखों से आंसू आ गए। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मेरे बारे में कुरान में कहा है। कहा कि अबू बकर हाँ तुम्हारे बारे में कहा है। अबू बकर तुम्हारे बारे में कुरान की आयत नाज़िल हुई है। फ़ौरन जो है आपने खाना पीना शुरू कर दिया उस आदमी का जो मुनाफिकीन के बहकावे में आके आपकी बेटी के ऊपर ज़िना की तहमत लगाने में शामिल हो गया था। इतना बड़ा गुनाह जिसने किया था। आज ज़रा सी बातों पे नाराज़गी हो जाती है, वो नाराज़गियाँ सारी ज़िंदगी चलती रहती है। अल्लाह के रसूल फ़तेह मक्का के मैदान में खड़े हुए हैं, मुजरिम खड़े हुए बड़े बड़े सर झुकाए। उमर के अल्लाह के रसूल गर्दन मार दीजिए, अबू बकर अल्लाह के नबी आज़ाद कर दीजिए फ़दिया में के। ऐलान आम कर दिया इज़हबू व अंतुम मुतलक़ा, जाओ तुम सब आज़ाद हो। लेकिन कुछ ऐसे भी आए जिन्हें देख के नबी को बड़ी तकलीफ़ हुई। कहा देखो तुमने मेरी बेटी को बड़ा नुकसान पहुँचाया है, बड़ी तकलीफ पहुंचाई है मुझे। आज भी वो दिन याद है जब तूने मेरी बेटी के तीर मारा था और वो तीर मेरी बेटी ज़ैनब के आर पार हो गया था और मेरी बेटी का उसी से इंतकाल और मौत वाक़ हो गई थी। लेकिन जाओ आज माफ़ी का दिन है, ना तस्रीब अलैकुम यौम, आज जो है कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई किसी पे कठिन नहीं, कोई दुश्वारी नहीं। आज मोहम्मद ने तुम सबको माफ़ किया, आज़ाद किया। ये हमारे नबी का अंदाज़ था। नबी रहमत बन के आए थे, उसी नबी के उम्मती हम भी हैं। हम भी अपने सीनों के अंदर से अपनी रहमतों को निकालें, अपने प्यार मोहब्बत को निकालें, उसको बांटे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। और आज वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है मुसलमानों का इत्तेफाक, मुसलमानों का इत्तेहाद, आपसी मोहब्बत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कतें परेशानियां पैदा हो सकती है। मेरे भाइयों, अभी रमज़ान गुजरा है, हमने रमज़ान कैसे गुजारा है आप अच्छी तरह जानते हैं। इतना अजीम महीना हमारे सामने आया था, हमने उसको गुजार दिया। मुहासबा कीजिए, क्योंकि रमज़ान तो गुजर चुका, लेकिन आपने कितनी मेहनतें, कितनी कोशिशें की। याद रखो सबसे पहला हिसाब क़यामत के दिन इसी अमल के बारे में होगा और नमाज के बारे में। इन्ना अव्वला मा युहासबुन्नासु बिही यौमल क़ियामा मिन अअमालिहिम अस्सलाह, सुनन अबू दाऊद। सबसे पहले बंदे का क़यामत के दिन जो हिसाब होगा नमाज के बारे में होगा। मुसलमानों, जो मुस्लिम कौम, जो मुस्लिम समाज, जो मुस्लिम मुआशरा रमज़ान के महीने में नमाज की पाबंदी ना कर सके, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि दावे झूठे भी हो सकते हैं, सच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन हालात बता रहे हैं, वक्त बता रहा है, रमज़ान का महीना पैगाम दे के गया है, तुम्हारी बर्बादी बता के गया है, तुम पे अफसोस करके गया है कि जो मुसलमान रमज़ान के महीने में रब के सामने अपनी पेशानी को न झुका सका, वो 11 महीने रब के सामने क्या झुकेगा। रोज़ा फ़र्ज था, जिस मुसलमान ने फ़र्ज रोज़ों को छोड़ दिया, वो मुसलमान जो है शव्वाल के 6 रोज़े, मुहर्रम के रोज़े, ज़िलहिज्जा के रोज़े क्या रखेगा मुसलमान, वो जो फ़र्ज रोज़ों को नहीं रख पा रहा है। तो ये रमज़ान का महीना हमें बता के चला रहा है, सिखा के चला रहा है कि मुसलमान कितना पानी में डूबा हुआ है और कितना जो है अच्छाई के अंदर डूबा हुआ है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह से माफ़िया मांगिए, तौबाएँ कीजिए, गिड़गिड़ाइए। प्यारे नबी ने फरमाया, जब बंदा मोमिन या गुनहगार बंदा अल्लाह से तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, सुम्मा ताबा, अल्लाह की तरफ रुजू होता है, ताब अल्लाहु अलैह, अल्लाह भी बंदे की तरफ रुजू करता है, तौबा कबूल फरमा देता है। प्यारे नबी ने फरमाया, जब बंदा, अल्लाह फरमाता है, रब की तरफ आता है, एक बानिश अल्लाह ताला एक ज़िरा इतना बंदे की तरफ आता है। जब बंदा इतना आता है तो अल्लाह डबल कर इतना आता है, बंदा चल के आता है तो अल्लाह भाग के बंदे की तरफ आता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक अंदाज़ है अपने नेक बंदों की तरफ आने का, उनकी बात को मानने का, उनको मनाने का। मालूम यह हुआ कि बंदे से अगर गुनाह हो जाए तो माफ़ी, गलती हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह बंदे की तरफ भाग के दौड़ के आता है, बंदे को माफ़ कर देता है।
वो वाक़या सो आदमी का जिसने 100 इंसानों का मर्डर किया था, अल्लाह से माफ़ी मांगने चला, रास्ते में इंतकाल हो गया, मौत के फरिश्ते आ गए, अजाब के फरिश्ते आ गए, झगड़ा होने लगा, अजाब के फरिश्तों ने कहा मैं लेके जाऊँगा, इसने नेकी नहीं की, रहमत के फरिश्ते कहने लगे हम लेके जाएंगे। पढ़े सही बुखारी किताब अहादीस अंबिया, रहमत के फरिश्ते कहने लगे नहीं नहीं, अल्लाह से तौबा करने चला था, नियत में तौबा आ चुकी थी, नियत बदल चुकी थी, क्योंकि प्यारे नबी ने फरमाया तमाम इंसानों को क़यामत के दिन नियत के मुताबिक उठाया जाएगा। फरिश्तों की बहस होने लगी, इससे पहले ज़मीन नापी जाती, अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया ए ज़मीन जिस बस्ती की तरफ ये जा रहा था थोड़ी सिमट गया, इस बंदे के नज़दीक आ जा। जब ज़मीन को नापा गया तो जिस बस्ती में जा रहा था उस बस्ती के नज़दीक बैठ गया। फरिश्तों ने कहा रहमत के देखो जहाँ जा रहा था वहाँ नज़दीक बैठा है मरने के बाद, लिहाजा हमारा इस पर हक़ बनता है, हम इसको लेके जाएंगे। अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। 100 मर्डर 100 खून किए थे, फिर भी अल्लाह की रहमत ने उसको अपनी रहमत में ढांप लिया। तो मालूम यह हुआ बंदा कितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, गुनहगार क्यों ना हो, फ़राइज़ क्यों ना छोड़ दिए हो, अगर अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। हदीस याद कीजिए अल्लाह के नबी की, जब बंदा मोमिन अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तौबा करता है और अपने मुंह को रोने का सा बना लेता है या आँख से आंसू टपका देता है, अल्लाह ताला ऐसी आग पर जहन्नम को हराम कर देता है। जिस दीन के अंदर इतनी फजीलतें हो, माफ़ी के इतने बहाने हो, और बंदा मोमिन बंदा मुजरिम गुनहगार बंदा माफ़ी ना मांगे, तौबा ना करे, उससे बड़ा बदनसीब कौन है। मेरे भाइयों, ईद रमज़ान का महीना जा चुका, ईद उल फितर भी ख़त्म हो चुकी। अपने गुनाहों पे नादिम होंगो, शर्मिंदा होंगो, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगो, तौबाएँ कर लो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने सूरह आना में फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला, यकीनन वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया, जिसके गुनाह पाक हो गए वो कामयाब हो गया। व ज़करा स्म रब्बिही, अपने रब के नाम को याद करता रहा, अपने रब की नाम की झप्पियाँ लेता रहा, अपने रब के नाम की तस्बीह पढ़ता रहा, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, व ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, जो भी छोटी मोटी दुआएं याद है उनको पढ़ता रहा, कहता रहा, फसल्ला, नमाजें पढ़ता रहा, तो ये कामयाब हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अपने आप को गुनाहों से पाक करना है। हमारा ये मुआशरा, ये समाज जो गुनाहों की दंगल में फंस चुका है, इसको वहाँ से निकालना है। अल्लाह की तारीफ बयान करनी है, अल्लाह को याद करना है, अल्लाह का जिक्र ज़बान से करना है, फसलना। और इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ नमाज है, नमाज के ज़रिए से अल्लाह को राज़ी करना है। हदीस में आता है अहमद के अंदर, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़ाइल अस्सलाह, अल्लाह के रसूल को जब कोई मामला पेश आता तो आप नमाज की तरफ रुजू फरमाते, आप नमाज पढ़ते, आप नमाज के अंदर अल्लाह से शिकवे शिकायतें करते, नमाज के ज़रिए से आप सुकून हासिल करते थे। मालूम यह हुआ कि जब भी मुसीबत आए, परेशानी आ जाए, कोई दुख आ जाए, दर्द आ जाए, तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला तमाम परेशानी को ख़त्म फरमाने वाला है। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना जा चुका, जैसे हमने इबादतें की, अल्लाह से आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को, कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि इन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, रब्बि इन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الجحيم، وقنا عذاب السعير، وقنا عذاب السموم، وقنا عذاب الجحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا يا ربنا، اغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الفاسقين، فانصرنا على القوم المنافقين.
اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارفعنا، اللهم اجبرنا، اللهم اصلح لنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الصالحين، وتوفنا مع الصديقين، وتوفنا مع المؤمنين، وتوفنا مع المسلمين. پروردگار ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، مجرم بندے ہیں. اللہ رمضان کا مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، جنت میں داخلے کا مہینہ، اللہ ہم نے یوں ہی گزار دیا، یوں ہی گوا دیا. اللہ اس کے حق کو ادا نہ کر سکے، اللہ کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی. رب عظیم معاف کرنے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. مولا معافی دے دے، مولا معاف کر دے، رحم فرما دے، گناہوں کو بخش دے، کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے. اللہ یہ تجھ سے وعدہ بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی آنے والی زندگی جو ہے اللہ اس کے اندر تیرے سامنے جھکیں گے، تجھے منائیں گے، تجھے راضی کرنے کی کوشش کریں گے. مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا. ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما دے. اے اللہ رمضان کا یہ مہینہ مسلمانوں نے روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کو سنا، بڑی محنتیں کی، ٹانگیں دکھ رہی تھیں، کمر میں درد بھی ہو رہے تھے، لیکن اللہ تیرے نبی کی حدیث یاد تھی. قرآن کہے گا قیامت کے دن مولا میں نے اس بندے کو سونے سے روک دیا، تیرے سامنے کھڑا رہا. روزہ کہے گا اللہ میں نے دن میں کھانے پینے سے روک دیا، اللہ اسی لیے بھوکے پیاسے رہے، اس لیے تیرے سامنے کھڑے رہے کہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح پڑھنے کو قبول فرما لے، ہمارے قیام کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری سنتوں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اللہ تیرے در کے سوا کوئی در ایسا نہیں ہے جہاں سے گنہگاروں کو معافی مل سکے، بھکاریوں کو بھیک مل سکے. اللہ ہم تیرے در کے محتاج ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں. اے اللہ ہمیں عطا فرما دے، عطا فرما دے. مولا ہمارے دامنوں کو رحمتوں سے بھر دے، معافی سے بھر دے، بخشش سے بھر دے. اللہ معاف فرما دے. اے رب عظیم راتوں کو جاگ جاگ کر تجھے راضی کرنے کی بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن اللہ پھر بھی کوتاہیاں تو ہوئی ہیں، غلطیاں تو ہوئی ہیں، نافرمانیاں تو ہوئی ہیں. اللہ معاف فرما دے. یہ اللہ بخش دے. مولا تیرے نبی نے فرمایا کہ شیطان نے تجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک تیرے بندوں میں اللہ ان میں جان باقی ہے، روح باقی ہے، میں تب تک ان کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ تبھی تو نے کہا تھا اے شیطان، اے ابلیس، تو بہکا جب تک بہتانا چاہے گا، لیکن میرے بندے جب تک مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں گے، میرا بھی وعدہ ہے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. مولا تجھ سے معافیاں مانگتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. مولا معاف فرما دے. تو حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. تجھے نہ موت ہے نہ اونگ آتی ہے. تو وہ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اے مولا ہمیں معاف فرما دے. اے مولا تو نے قرآن مجید میں کہا ہے سورہ حشر کے اندر اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارو. اللہ جتنے تیرے اچھے نام ہیں ہم تجھے ان ناموں کا واسطہ دیتے ہیں.
मोंगा तू गफूर भी है, गफ़ार भी है, तेरी माफ़ी बड़ी आम है, मोंगा बख्श दे। मोंगा तू रहीम भी है, रहमान भी है, मोंगा अपनी रहमतों की बारिशें बरसा दे। मोंगा तू हकीम भी है, अजीज़ भी है। अल्लाह हमारे तमाम कामों के अंदर हिकमतें पैदा फरमा दे। ये अल्लाह हम पे आने वाली मुसीबतों से तू हमें निजात दे दे। अल्लाह जो मुसीबतें आई हुई हैं अल्लाह उन मुसीबतों को टांग दे। मोंगा तेरी खूबियों का क्या कहना, मोंगा तू मुसव्विर भी है, मुहैमिन भी है, तू तो हमें वहाँ से भी देख रहा है। अल्लाह हमारे दिलों को हसद से पाक कर दे, नफ़रतों से पाक कर दे, हसद को कीनों से दिलों को से अंदर से निकाल दे। अल्लाह बुग़्ज़ अदावत नफ़रतें तमाम बीमारियों से हमारे सीनों को पाक कर दे। मोंगा व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम, इन सीनों के अंदर, इन दिलों के अंदर मोंगा अपनी मोहब्बत को दाखिल कर दे, मुसलमानों की मोहब्बत को दाखिल कर दे, नबी की सहाबा की सहाबियात की मोहब्बत को बिठा दे। ये अल्लाह हमारे सीनों को हर तरह के गुनाहों से पाक कर दे। मोंगा तू तो वो है जिसके बारे में तूने कुरान में कहा है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा। अल्लाह जितने तेरे अच्छे नाम हैं उन नामों का तुझे वास्ता देते हैं। अल्लाह तूने 3 आदमियों की मुसीबत को टाल दिया था, ख़त्म कर दिया था जो पहाड़ी में फंस गए थे। अल्लाह हिंदुस्तान के अंदर, वतन अज़ीज़ के अंदर हम भी कुछ ना कुछ परेशानी में तो हैं, मुसीबत में हैं, लेकिन मौला तेरी ज़ात के सिवा कोई ज़ात ऐसी नहीं जो मुसीबत से निजात दे सके। मौला माफ़ फरमा दे, मौला निजात दे दे, अल्लाह मुसीबतों को टाल दे, अल्लाह मुसीबतों को निकाल दे। ए अल्लाह हम पे रहमतों की बारिशें बरसा दे। मौला हमारे सीनों के अंदर ऐसा दिन पैदा कर दे, ऐसी तासीर पैदा कर दे। मौला जब दुआएं करते हैं तो आँखों से आंसू नहीं निकलते, दिल को रोना नहीं आता। अल्लाह सीनों में ऐसी तासीर पैदा कर दे, जब तुझसे मांगा करें तो आँखों से आंसुओं की धारियाँ बह पड़ा करें। अल्लाह हमारा दिन भी रोया करे। मौला ऐसे ऐसे वक्त गुजरे हैं, आसमान ने भी आंसू बहाए हैं, ज़मीन ने भी आंसू बहाए हैं। अल्लाह हज़रत सुमैया का वाक़या, अल्लाह हज़रत खुबैब का वाक़या, हज़रत खब्बाब का वाक़या, हज़रत सईद इब्न आमिर का वाक़या, अल्लाह ये ऐसे वाक़यात थे जो दिलों को झिझोड़ने वाले थे। अल्लाह ऐसी तासीर हमारे सीनों के अंदर पैदा कर दे, जब भी तुझसे मांगा करे अल्लाह आँखों से कम आंसू ना आए, दिन तो कम से कम रोया करे। हमारे दिन को ऐसा बना दे। मौला बड़ी ख़ताएँ की हैं, बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। मौला माफ़ फरमा दे। मौला तमाम नमाज़ों को, इबादतों को कबूल फरमा दे। ये अल्लाह हिंदुस्तान में अमन सुकून शांति पैदा फरमा दे। अल्लाह दुश्मन हर तरीक़े से, इस्लाम दुश्मन ताकतों से मिलके अल्लाह इस्लाम को मिटाना चाहता है। ये तो मैं जानता हूँ अल्लाह न इनके अंदर, न इनके बाप दादों के अंदर, न दुनिया के किसी बादशाह के अंदर इतनी ताकत है कि इस्लाम का बाका भी कर सके। लेकिन अल्लाह तूने भी वादा किया है इस्लाम गालिब रहेगा, इस्लाम बुलंद रहेगा और मोमिन कामयाब रहेंगे। अल्लाह हमारे ईमान के अंदर मजबूती पैदा फरमा दे, ईमान में मजबूती पैदा फरमा दे। मौला जिस दिन ईमान मजबूत हो गया अल्लाह दुनिया हमारी है, दुनिया हमारे सामने झुकी होगी। अल्लाह तेरे इस्लाम का कानून सारी दुनिया में नाफिज होगा। ये अल्लाह तो हमें ऐसा बना दे। परवरदिगार दुश्मन जो साजिशें नई नई पैदा कर रहा है, नए नए बहाने तराश रहा है, अल्लाह दुश्मन को नाकाम फरमा दे, अल्लाह नाकाम कर दे, इसकी साजिशों को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह दुश्मन भी तदबीरें कर रहा है, साजिशें कर रहा है, अल्लाह तुझसे बेहतर तदबीर करने वाला कौन है? अल्लाह इनकी तदबीरों को नाकाम फरमा दे। ये अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे, रहम फरमा दे, मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा दे। अल्लाह वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह यहाँ के मुसलमानों को अपने रहमत में ले ले, अमन सुकून शांति पैदा फरमा दे। परवरदिगार मुसलमान बहुत परेशान है, दुनिया के अंदर बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अल्लाह हम उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह दिन से आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। अल्लाह तू जानता है हम कितनी दिन की गहराइयों के साथ में, सच्चाई के साथ में हम दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह दिनों के अंदर वो तासीर भले पैदा ना हो जो नबी की ज़बान से हुआ करती थी, अल्लाह हो भी नहीं सकती, लेकिन अल्लाह दिन में वो तकलीफ़ तो है जो तकलीफ़ नबी हमें बता के गए हैं, समझा के गए हैं मुसलमानों के लिए। ये अल्लाह मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा दे। अल्लाह ये अमरीका जो सारी दुनिया का दुश्मन है, ये आज तक ना किसी का हुआ ना किसी का होगा, हमेशा हर एक को अपने झांसे में लेके आपस में लड़वाता है, अल्लाह आपस में मरवाता है। ये अल्लाह अगर इसके नसीब में हिदायत है अल्लाह इसको हिदायत दे दे,
ये अल्लाह, वरना इसको ज़मीन से नेस्त नाबूद कर दे, बर्बाद कर दे, इसको मिटा दे। ये अल्लाह, अगर हमारी दुआओं के अंदर वो तासीर नहीं है, वो ताकत नहीं है, अल्लाह वो ताकतें पैदा कर दे। ये अल्लाह, अगर दुआओं के अंदर वो ताकत पैदा नहीं हो पा रही है, अल्लाह वो तासीर दे दे कि हमारी दुआओं में ऐसी ताकत पैदा हो जाए, तासीर पैदा हो जाए। अल्लाह, जहाँ ये खड़ा हुआ हो और मुसलमानों के बारे में बुरा सोच रहा हो, अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया था क़यामत के वक्त ज़लज़ले आएंगे, ज़मीनें फट गई हैं। ये अल्लाह, बड़े भयानक ज़लज़ले आए थे, अभी मस्जिदें तक ढह गई, अल्लाह बिल्डिंगें इमारतें ढह गई। ये अल्लाह, ये इस्लाम के दुश्मन अगर ना माने, मुसलमान को मिटाना चाहे, अल्लाह इनके नीचे ज़मीनों को फाड़ दे, अल्लाह इनको ज़मीन के अंदर दफन फरमा दे। ये अल्लाह, ये इस्लाम के दुश्मन है, अल्लाह इनको नेस्त नाबूद कर दे। परवरदिगार, हमारे मुसलमान भाई कभी बर्मा में थे, कभी म्यांमार में थे, कभी आसाम के अंदर, कभी बिहार बंगाल में, तो कभी कश्मीर में, और मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर बहुत परेशान हैं। लेकिन अल्लाह, मैं जानता हूँ, हम भी जानते समझते भी हैं, गलतियाँ तो हमसे हुई हैं, कोताहियाँ तो हमसे हुई हैं। अल्लाह, हमने तौहीद को अपनाने की कोशिश नहीं की है, और तौहीद ही वो बुनियाद है जिसकी बदौलत अजाब ख़त्म हो जाया करते हैं, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह, फिर भी है तो तेरे ही बंदे, मानते तो तुझे ही हैं, तेरे सिवा किसी से नहीं मांगते। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा दे। अल्लाहुम्मा रहम, अल्लाहुम्मा रहम, अल्लाहुम्मा रहम मुस्लिम फ़लस्तीन, मुस्लिम फ़लस्तीन वंसुरहुम। ए अल्लाह, उनकी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ अला निसाइहिम, अल्लाह वहाँ की औरतों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। वहर्रिम अब्नाअहुम, अल्लाह वहाँ के बच्चों को आज़ादी अता फरमा, वहाँ के बच्चों को आज़ादी अता फरमा। मौला, हमारे दिल, हमारी ज़बानें वो कहानी, वो दास्तान बयान नहीं कर सकती। अल्लाह, आसमान ने देखा, ज़मीन ने देखा, ज़मीन का सीना कलेजा फट गया। अल्लाह, मासूम बच्चे, जिन बच्चों को माओं की गोद में हंसना चाहिए था, मुस्कुराना चाहिए था, खेलना चाहिए था, माँ बाप से बातें करनी चाहिए थी, मौला उन बच्चों को मिसाइल के निशाने बनाया गया। अल्लाह, तेरी ज़मीन पे, तेरी ज़मीन के ऊपर, जिस ज़मीन का वारिस तूने इंसानों को बनाया, अल्लाह ये इस्लाम दुश्मन ताकत है। अल्लाह, तेरे इन बंदों को बिठा रही है, तेरे इन मासूम बच्चे, मुस्कुराते बच्चे, तेरे अल्लाह के नेक बंदों के बच्चे हैं। अल्लाह, ये अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह, जब खाना काबा की बारी आई थी, ए अल्लाह, मक्का वाले खाना काबा को तन्हा छोड़ के चले गए थे, मौला तूने आसमान से परिंदों को भेज दिया था। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। अल्लाह, आज भी तू चाहे तो आसमान से परिंदों को भेज सकता है। ए मौला, ऐसी चिड़ियों को भेज के इज़राइल को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, जड़ से मिटा दे, नेस्त नाबूद कर दे। अल्लाह, इसके वजूद को मिटा दे। अल्लाह, इसको इबरात नसीहत बना दे, क़यामत तक आने वाली नस्लें इसको याद करते रहें। अल्लाह, तू इसको ऐसा बना दे। ए मौला, इब्राहिम को आग में फेंका गया, तूने इब्राहिम की आग को ठंडा कर दिया। अल्लाह, तू फ़लस्तीन के मुसलमानों पे ऐसा रहम फरमा दे। ए अल्लाह, तूने यूनुस को मछली के पेट में बाक़ी रखा, अल्लाह तू फ़लस्तीन के मुसलमानों पे ऐसे रहम फरमा। ए मौला, उनके हाल पर रहम फरमा दे। मौला, बड़े मज़लूम है वो, बहुत परेशान है। ए अल्लाह, मुसलमानों को फरियाद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन मौला तेरे सिवा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो मदद कर सकती हो। अल्लाह, तूने बदर के मैदान में, उहद के मैदान में, और न जाने किस किस मैदान जिहाद के अंदर, अल्लाह तूने फ़रिश्तों को नंगी तलवारें दे के भेज दिया था। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्तों की फ़ौज नाज़िल फरमा। ए अल्लाह, फ़रिश्तों को भेज दे। अल्लाह, इज़राइल को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। मौला, गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमा। मौला, सीरिया के मुसलमानों पर रहम फरमा। मौला, यमन के मुसलमानों पर रहम फरमा। मौला, अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुसलमान पे ज़्यादती कर रहा है, मुसलमान को सता रहा है, परेशान कर रहा है। ए अल्लाह, न जाने किसके बहकावे में आके ऐसा कर रहा है। ए अल्लाह, इनके अंदर आपस में मोहब्बत कायम फरमा दे। अल्लाह, अपनी रहमतों की बारिशें बरसा दे। ए अल्लाह, इसको समझ दे दे। अल्लाह, अगर इसको समझ ना आई, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अल्लाह, इन मुसलमानों को समझ दे दे, अक़ल दे दे, अक़ल का सही इस्तेमाल करने वाला बना दे। ए अल्लाह, हम जानते हैं, समझते भी हैं, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान परेशान तो है, लेकिन अल्लाह हमारे अंदर मुनाफिकीन की लंबी फहरिस्त शामिल हो चुकी है। अल्लाह, हम नहीं जानते कौन है वो। अल्लाह, मदीना के अंदर बेशुमार थे कि अल्लाह तू हमें इन मुनाफिकीन से महफूज फरमा दे। अल्लाह, ये दुश्मन के साथ में मिलके अपनी जान बचाने की खातिर अल्लाह ये हमें मिटाना चाहते हैं। ये अल्लाह, हम तो तेरे मानने वाले हैं, तेरी तौहीद को अपनाने वाले हैं। अल्लाह, तुझे तौहीद का वास्ता देते हैं। अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा, माओ बहनों की हिफाजत फरमा, बच्चों की हिफाजत
हिफाजत फरमा, मुल्क की वतन की हिफाजत फरमा। अल्लाह वतन अजीज़ में अमन व अमान नाज़िल फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों के हल पर रहम फरमा दे। परवरदिगार जो लोग परेशान हैं परेशानियों को दूर फरमा दे, दूर फरमा दे। अल्लाह कारोबार में बरकतें पैदा फरमा दे। ये अल्लाह हमारी इबादतें कबूल फरमा दे। मौला जो लोग दुनिया से जा चुके उन पर रहम फरमा दे, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह उनको जन्नत में बेहतर से बेहतर जगह अता फरमा दे। अल्लाह जो लोग ज़िंदा हैं उनको इबादत करने वाला बना दे, नमाज का पाबंद बना दे। या अल्लाह अपने सामने झुकने वाला बना दे, नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे, सहाबा से मोहब्बत करने वाला बना दे, सहाबिया से मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह दीन पे मरने मिटने वाला बना दे, सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना दे, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने वाला बना दे। अल्लाह ये मुसलमान बातें तो बहुत करता है, ज़बान बहुत चलाता है, लेकिन अल्लाह तेरे सामने झुकने को तैयार नहीं है। मौला तू इसे माफ़ फरमा दे, मौला इस पर रहमतों की बारिशें बरसा दे, मौला इसे दीन की समझ दे दे। या अल्लाह दुनिया के अंदर बड़ी बातें हो गई हैं, अल्लाह हो गई हैं, होने दे, हमें कोई परवाह नहीं है। अल्लाह तू हमें ऐसा बना दे कि हम मस्जिदें भरने वाले बन जाएं, तेरे सामने झुकने वाले बन जाएं, नमाज़ों के पाबंद बन जाएं। अल्लाह दीन पे मरने मिटने वाले बन जाएं, दीन पे अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह कुरान को पढ़ने वाला बना दे, कुरान को समझने वाला बना दे, कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे, रोज़ाना कुरान की तिलावत करने वाला बना दे। ए अल्लाह माओ बहनों के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे, अल्लाह दीन की तलब पैदा फरमा दे। मौला हम सब मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा दे, रहम फरमा दे, रहम फरमा दे। अल्लाह तेरी रहमत के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जन्नत भी मिलेगी तो तेरे रहम से मिलेगी। ए अल्लाह हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं, जहन्नम से आज़ादी मांगते हैं। ए अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ादी दे दे, जहन्नम से आज़ादी दे दे, जहन्नम से आज़ादी दे दे, जन्नत का परवाना दे दे। अल्लाह यहूद और नसारा को रुस्वा कर दे, ज़लील कर दे, बेइज्जत कर दे। अल्लाह मुशरिकीन को ज़लील फरमा दे, मुनाफिकीन को अल्लाह तो नाबूद कर दे। ये अल्लाह मुनाफिकीन को रुस्वा कर दे। ये अल्लाह मुसलमानों को इज़्ज़त दे दे। अल्लाह इज़्ज़त ज़िल्लत तेरे ही हाथ में है, तू जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। अल्लाह हमें इज़्ज़त अता फरमा दे। अल्लाह इज़्ज़त हमारी शान थी, हमारी शान है। अल्लाह हमें कुरान के ज़रिए से, हदीसों के ज़रिए से इज़्ज़त अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे। परवरदिगार जो नमाज़ें पढ़ी हैं कबूल फरमाने, जो रोज़े रखे हैं कबूल फरमाने, जो इबादतें की हैं कबूल फरमाने, जो तरावी पढ़ी है कबूल फरमाने, जो कोताहियाँ हुई हैं माफ़ फरमा दे। मौला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Kita jangan jadi jaga baik. Buat apa?